Hello, friends. A very warm welcome to Ansarkari. And today, again, we are picking up some important themes and ideas which will be helping you to get a clarity with respect to both prelims, mains, examination. You want to get skills. And for skills, as students keeps on asking me whether it is important to inculcate facts also. Yes, definitely, it is very important to have facts. Without facts, you cannot write good analytical answers because facts are like snacks. अगर हमें स्नैक्स चाहिए तो साथ में आप समझिए कि एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए. So that is why we have to go with the both ideas, not just analytical but facts also. We will discuss in our sessions and also in our personal interactions and our personal curated courses कि हम उसको कैसे करें. President asks Supreme Court on assent to bills. Can timelines be imposed? So, in a reference to Supreme Court, President Draupadi Murmu has posed 14 crucial questions to top court's appellate verdict that fix timelines for governor and president. So, she is asking court's opinion under Article 143(1). Agar Supreme Court is talking about Article 142, she is talking about Article 143(1), whether actions of governors and president are justiciable and whether such timeline can be imposed on them, because there is nothing as such given in the Constitution. So there are conflicting judgments of the Supreme Court as to whether assent of President of India under Article 201 of the Constitution of India is justiciable or not. So तीन आर्टिकल आ गए, 143(1) आ गया, 142 की मैंने बात की और 201 भी आ गया. So Article 145(3) again, when the President makes a reference for court's opinion, it is placed before 5 judges bench, जैसे अयोध्या dispute में हुआ था. Citing pendency of case, had declined to answer the question referred to it whether a temple existed below the dispute structure or not. Article 143(1), which has invoked which was invoked by the president to seek the court's opinion, says if at any time appears to the president that a question of law or fact has arisen or is likely to arise which is of such nature and such public importance that it is expedient to obtain the opinion of the Supreme Court upon it, he may refer the question to that court for consideration, and the court may, after such hearing, on which such reference is received. So under Article 201 of the Constitution, no time frame has been set for the presidential action or decision. The top court had said that in case of any delay beyond this period, appropriate reasons would have to be recorded and conveyed to the state concerned. कोर्ट ने ये सब बातें तमिलनाडु गवर्नर आर.एन. रवि की जो उनके कॉन्टेक्स्ट में की, जिनके सारे एक्शंस को इलीगल और हेरनेस करार दे दिया गया, 10 bills which he reserved since November 2023. So in a reference to the Supreme Court, President Murmu sought to know, is the exercise of constitutional discretion by the president under Article 201 of the Constitution ये justiciable है नहीं, जो मैंने पहले बोला. In the absence of constitutionally prescribed timeline and the manners of exercise of power by the president, can timelines be imposed and manner of exercise be prescribed through judicial orders for the exercise of discretion by the president under Article 201 of the Constitution of India? तो यही क्वेश्चन है. तो आपको एकदम पता होना चाहिए कि आर्टिकल 145 क्या बोलने जा रहा है, आर्टिकल 143(1) का यहाँ पे रोल क्या है और आर्टिकल 201 का रोल क्या है. ये सब की बातें हम ध्यान देंगे. चलिए आगे इसी कॉन्टेक्स्ट को आगे देखते हुए अब 14 क्वेश्चन जो द्रौपदी मुर्मू मैम ने पूछे, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने जो पूछे हैं, वो आप देखिए कि जो 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही पूछा. क्या ऑप्शंस क्या हैं गवर्नर के सामने, गवर्नर क्या बाउंड है aid and advice tendered by the council of ministers while exercising all the options available with him when the bill is prescribed before him under article 200 of the constitution. तो आप जो है आप ये लगाइए कि जो ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं आपको ये डिटेल डिस्कस होकर देखने होंगे. और सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको उन्होंने इन्वोक किया और एप्रिलेट जजमेंट के केस में किया. तो कॉन्टेक्स्ट यही है कि जो इंटरप्ले ऑफ पावर्स है बिटवीन सेंटर एंड अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स, गवर्नर्स अपॉइंटेड सेंटर के द्वारा किए जाते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को स्कटल करते हैं, अंडरकट करते हैं, बिल रिफ्यूज कर देते हैं करने से. गवर्नर रवि इसी कॉन्टेक्स्ट में फायर में आए और सुप्रीम कोर्ट इन इट्स रूलिंग अलाउड स्टेट्स द राइट टू सीक रिट्स ऑफ मैंडमस, वेरी इंपॉर्टेंट, writ of mandamus from the Supreme Court against the president. This is essentially a right to knock on the doors of court seeking directive against the president if she does not decide on the bills within the prescribed time limit. ये पीटी के लिए बहुत important. So the government used ruling to argue that judiciary was undermining parliament or people's mandate, and Attorney General of India R. Venkataraman said the president was not heard before the Supreme Court passed directives for her office to follow. Vice President ने भी यही बोला, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात की सेवरल ओकेजन्स पे, और टसल जो है पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में इतनी पुरानी है जितना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था. बट द पॉइंट इज दैट the first 3 decades after independence, court and government sparred on interpretation of the right to property, leading to the constitutional amendments and adverse court orders. Eventually, in the
लैंडमार्क केशवरत्न भारती केस, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई और जिसके द्वारा लैंड रिफॉर्म भी अलाउ किए गए। फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आप एक उसका फंडामेंटल नेचर छीन लिया गया, बट द सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड पार्लियामेंट पावर्स टू टिंकर विद एनी अदर फंडामेंटल राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये हमारे जो मेंस का जो सीरीज जो हम सिस्टम जो क्रिएट हमने किया हुआ है उसका ये पार्ट है, आपको याद रखना होगा, अपने पॉइंट्स में इसको लीजिए। अगर प्रीलिम्स के एंगल से मैं फिर से बात करूं तो क्या प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट से पहले व्हाट अदर रेफरेंसेस हैव बीन गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट? तो उसमें कावेरी रू है 1991 का, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल इशूड डायरेक्टिव टू कर्नाटका टू रिलीज 2000 5000 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर टू तमिलनाडु। इससे कांग्रेस गवर्नमेंट जो कर्नाटका में थी लेड बाय एस बेंगारप्पा टू इशू कर्नाटका कावेरी बेसिन इरिगेशन प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस उन्होंने लेके आए। फिर उसके बाद उन्होंने जो है एक तरीके से ट्राइब्यूनल की अथॉरिटी को ओवर रूल कर दिया। So President R. Venkatraman sought the opinion of the top court whether the state government could refuse to implement an order of a tribunal set up by center. तब आप ये देखिए प्रेसिडेंट रेफरेंस आस्क वेदर द कर्नाटका ऑर्डिनेंस इज इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जब कंक्लूड किया था कि कर्नाटका एक्ट जो है वो बियॉन्ड लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है। सिमिलरली अयोध्या का हो गया 1992 का, ये भी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट it acquired all areas in dispute in suits pending in Allahabad High Court and promised to rebuild the race structure while also taking appropriate step to construction of Ram temple। ये बात हुई थी। So तीसरा जो है गुजरात राइट्स 2002 की बात है। इन द आफ्टरमैथ ऑफ 2002 गुजरात राइट, बीजेपी गवर्नमेंट इन द स्टेट वांटेड टू होल्ड अर्ली इलेक्शंस while polls were due in March 2003। Governor S.S. Bhandari, acting on the recommendation of the state cabinet under the Chief Minister Narendra Modi, dissolved the assembly in July 2002। This meant that the last sitting of the assembly before dissolution had been held on April 3। So Election Commission said it was not in position to conduct elections before October 3, the day on which the 6-month deadline to have a sitting of the assembly would expire, जो 6 महीने का timeline होता है। Under Article 174(1) of the Constitution, which says the 6 months shall not intervene. 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session। 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता है, 6 महीने से पहले होना पड़ेगा। This prompted Atal Bihari Vajpayee's government at center to seek the opinion of the Supreme Court। President Kalam साहब ने पूछा whether Article 174 was subject to the decision of the Election Commission under Article 324 as to the schedule of the elections of the assembly and whether Election Commission was required to carry out the mandate of Article 174। So Supreme Court ने Election Commission की पोजीशन को अपहोल्ड किया और कहा कि there was no constitutional mandate to hold election within 6 months of the last sitting of an assembly if the house was prematurely dissolved। The provisions of Article 174 are mandatory in nature as far as the time period between two sessions is concerned in respect of live assembly and not dissolved assembly। क्योंकि डिसॉल्व हो गया था इसलिए वो नहीं होगा। तो आर्टिकल 174 एंड आर्टिकल 324 ऑपरेट इन डिफरेंट फील्ड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, आर्टिकल 174 और 324 का जो है हमने चर्चा की और इलेक्शन कमीशन की जो हमने बात की, उसकी पावर्स की बात की, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 2G लाइसेंसेस 2012, इन अप्रैल 2012 द सेकंड टर्म ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट लेड बाय मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, उनमें भी प्रतिभा पाटिल प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने क्लैरिटी दी थी सुप्रीम कोर्ट से ऑन इट्स ऑर्डर कैंसिलिंग 122 SG 2G telecom licenses। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन दिया ऑक्शंस आर नॉट द ओनली परमिसिबल मेथड फॉर डिस्पोजल ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस ऑल सेक्टर्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस since this mode was merely an economic policy and not a constitutional mandate that could be applied in absolute terms। it said the court respected the mandate and wisdom of the executive on such matters। so वही बात है, हमें देखना होगा कि किस तरीके से पूछा जा रहा है। सिक्किम के ऊपर बात करते हैं। सिक्किम टर्न्स 50, प्रोग्रेस मीट्स पर्पस, नेचर्स ग्रोथ। सो आप लगाइए हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, सबसे इंपॉर्टेंट बात फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हाईएस्ट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, एसडीजी चैंपियन ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, पॉवर्टी रिडक्शन विद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 0.011, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज आल्सो सर्जिंग, वन ऑफ द रिमार्केबल इंप्रूवमेंट्स। सोशल वेलफेयर में भी आप ये सारे पॉइंट्स मेंस एग्जामिनेशन में लेके आ सकते हैं। 33% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब, 50% रिजर्वेशन अर्बन एंड लोकल बॉडीज एंड डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस है। टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स है, सिक्किम अन्न योजना, अन्न साक्षरताकरण योजना, safe spaces for women, empowerment through education, housing, skill development and entrepreneurship, and harmony with nature की जब हम बात करते हैं, India's first fully organic farming state, first to ban chemical fertilizers, complete ban on all potable mineral water bottles of 2 liters and below. This is amazing. Organic certification across agriculture and horticulture, biodiversity hotspot with more than 4,000 flowering plant species and 574 bird species, 26% of India's floral diversity. UNESCO World Heritage Site Kanchenjunga National Park in the mixed category.
100% coverage in sanitation, drinking water, electrification. Mera Rukh, Mera Santati initiative, My Tree, My Legacy. So amazing things have been done by Sikkim. And in terms of education, gender parity index, best in class pupil teacher ratio, supporting learner through free provision of textbooks. So zero poverty, 100% literacy, and RCC roof for every household by 2027. That's what they believe. Now, again, coming to the point of Viksit Bharat, shared prosperity is very important. So rural development, like the way we talk about, urban areas. Yesterday we were talking about Noida. So underdeveloped blocks in the backward areas must be developed, और वो एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. 39 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, and blocks have been grouped into 5 themes: health and nutrition, education, agriculture and allied services, basic infrastructure, and social development. During the meeting, PM also informed the CMs about the achievements of Operation Sindoor as well. So very important. State chief ministers and Niti Aayog and rural development is a very, very important milestone for India in order to be Viksit Bharat. Blocks are the second key tier local governance, which is created post independence in 1950s. There are about 7,000 blocks across the states in India. उसके बाद हम बात कर सकते हैं 39 key performance indicators. Program was launched on January 7, 2023, improving the quality of life, raising the living standards, and ensuring, inclusive growth. So this is what is actually required to become India a $30 trillion economy by 2047 with a per capita income of 18,000 per annum. Now going further, April unemployment rate at 5.1, that is what service is. Youth unemployment rate high for female, that is very true, always there. And the labor force participation rate and the worker population ratio is very, very important to understand. सो हम लेबर पार्टिसिपेशन रेट की जब हम बात करते हैं, या फिर आप कहिए कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो हमें बताता है, उसके हिसाब से हमारी पॉलिसीज, उसके हिसाब से हमारी स्कीम्स, उसके हिसाब से हमारा एमएसएमई का रोल, उसके हिसाब से हमारा जियो स्ट्रैटेजिक जो कंडीशंस हैं, और ये सारी बातें हमारी कहीं ना कहीं सब चीजें लिंक होती हैं. प्रीलिम्स के लिए आपको द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का इंडिकेशन पता होना चाहिए, आपको रूरल और अर्बन का गैप पता होना चाहिए, साथ में जो है आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन उसको रिलीज करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए. OPEC, very important. OPEC as a body, you must know, India's oil demand is rising more than China. It is rising. It is an indicator of our growth of economy, and it is projecting further rise of 5.99 million, and this is going to 5.99 billion barrels per day. This is very important. This is the only thing which we can take up from here. China, like India, has increased in coal-based capacity, but it has pursued renewable energy with equal vigor. तो इसीलिए हम अभी छोड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमने जो है फॉसिल फ्यूल्स को हमने अलग तरीके से डील किया. 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो पेरिस में हुई थी 2015 में, आपको याद होना चाहिए, उसने जब डिसाइड किया था कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बाई 2100 तक हमें रोकना है. जब हम इंडस्ट्रियल एरिया से उसको कंपेयर करेंगे, ये मीन टेम्परेचर है. इसका मतलब है कि कोई ना कोई एरिया में ज्यादा भी टेम्परेचर रहेगा, कहीं ना कहीं कम भी रहेगा. इसीलिए 2024 में जब हम देखते हैं ईच सक्सेसिव रिपोर्ट जो यूएनएफसीसीसी की है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसने एक ऐसी पिक्चर बनाई है. अब वो पिक्चर जो बनाई है उससे आपको क्या पता लगता है कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम अपनी रिपोर्ट्स में बार बार कह रहे हैं कि क्लाइमेट एक्शन एंड क्लाइमेट इनइक्वलिटी जो रिपोर्ट है बार बार कह रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी हमें बढ़ानी होगी. तो पहला तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी जो बढ़ाने की बात कर रहा है, आप वो मुझे बताइए 5 एजेंडा जिनसे वो भर पाएगा. दूसरा, अभी हमने जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात की, क्या रिन्यूएबल एनर्जी भी जॉब क्रिएटर बनेगा? और अगर वो जॉब क्रिएटर बनता है तो क्या उसके बाद जो हमने पहले क्वेश्चन में बात किया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू साहब की, वो जो इश्यूज उठा रहे हैं, क्या वो इनडायरेक्टली हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं? क्या गवर्नर जब जब बिल्स को रोकता है तो क्या उससे क्या फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर वो ट्वीक आता है, या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है? इन एंगल से आपको एक शॉर्ट नोट लिखना होगा. इंस्टेड इंडिया क्या ट्राई कर रहा है? इंडिया इस फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहा है, लेकिन साथ साथ में इंडिया और जो चाइना भी, चाइना का रोल तो बहुत डोमिनेंट है. चाइना ने 419 गीगावाट ऐड किया है सिंस 2015. इंडिया ने सिर्फ अभी 87 गीगावाट ऐड किया है. सो इफेक्टिवली चाइना एडेड टू इट्स कोल बेस्ड जनरेटिंग कैपेसिटी विच इज 5 टाइम्स दैट ऑफ इंडिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. लेकिन इंडिया और चाइना दोनों ने जो सब्सटेंशियल कोल बेस्ड कैपेसिटी की, उसमें डिफरेंस है. चाइना ने जो अपनी कोल बेस्ड कैपेसिटी को ऐड किया है, उसके अंदर उसने रिन्यूएबल बेस्ड एनर्जी का भी ह्यूज एडिशन किया है. चाइना हैज एडेड मोर देन 389 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, और उसी कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में मोर देन 300 गीगावाट आपने विंड पावर भी कर दी. जबकि इंडिया ओनली 66 गीगावाट सोलर कैपेसिटी, ओनली 19 गीगावाट आपने जो है विंड कैपेसिटी की है. तो ये अब आप देख सकते हो कि चाइना धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ बढ़ रहा है,
और उसका शेयर तो कम हो रहा है कोल में, लेकिन इंडिया का शेयर कम नहीं हुआ है। दूसरा, अगर आप एक और बात देखेंगे तो चाइना हैज अबाउट 380 गीगावाट ऑफ अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट्स, 380, और उसमें से 311 गीगावाट्स ऑफ सुपर क्रिटिकल यूनिट्स कहना चाहिए, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल दोनों जो है मोर देन 60% है। इंडिया का केस बहुत डिफरेंट है। इंडिया के पास ओनली 3.6 गीगावाट ऑफ अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट है और अबाउट 70 गीगावाट ऑफ सुपर क्रिटिकल यूनिट है, जो कि 33% ही बनते हैं। ये अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो चाइना ने डिप्लॉय की है वो 20 साल से भी ज्यादा की है, जबकि इंडिया ने 10 साल तक ही की है। तो पॉइंट यही है कि अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जिनके अंदर हायर एफिशिएंसी होती है, जिनके अंदर ग्रीन हाउस गैस भी थोड़ा कम रिलीज होगा, आप कह सकते हैं कि वो कम बर्न करते हैं, तो इंडिया का क्या होगा? सो एनवायरमेंटल नॉर्म्स के केस में भी वेरी स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट नॉर्म्स गोज बाय 2011 एज फार एज चाइना इज कंसर्न। और वहां पर जो है फ्लू गैस डीसल्फराइजर्स एफजीडीज, वो जो चाइना ने जो है इंस्टॉल करने शुरू कर दिए थे मच अर्लियर ऑन बाय 2013, दे इट हैड इंस्टॉल्ड एफडीजीज प्रैक्टिकली फॉर इट्स एंटायर फ्लीट। इंडिया ने 2015 में शुरू किए हैं। तो कंपेरेबल स्टैंडर्ड की जब हम बात करते हैं, हम कंप्लायंस को आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम जो है सेंट्रल सेक्टर प्लांट्स की कंप्लायंस रेट भी हमारे यहाँ कम है, प्राइवेट सेक्टर प्लांट्स का उनसे अच्छा है, लेकिन वो फिर उनकी कैपेसिटी थोड़ी है। आयरनी इज दैट वन ऑफ द लीडिंग engineering institutions in India had questioned the efficacy of installing FGDs since their study 2023 में रिवील किया कि सल्फर ऑक्साइड्स को वो कैप्चर कर लेते हैं, which is the job of FGDs, कार्बन डाइऑक्साइड is being released, implying that FGDs जो हैं वो enhanced carbon footprints दर्शा रहे हैं। So China has added to its coal based generating capacity manifold, उसने अपना रिन्यूएबल जनरेशन भी बहुत अच्छे से परस्यू किया। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि क्या इंडिया को यही गोल अपनाना होगा कि कोई और इसके पास कोई और तरीका भी है? प्लीज ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट दैट हाउ इंडियाज fossil fuel and renewable energy combination is going to make sure that India becomes Viksit or developed and a confident nation by 2047. भारत नेट जो पीएम वाणी कॉम्बो जो हम बात कर रहे हैं, कैन ब्रिज आवर डिजिटल डिवाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत नेट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट रूरल ऑप्टिकल फाइबर रोल आउट प्रोजेक्ट covering 2 lakh gram panchayats. BharatNet delivers high-speed, scalable broadband infrastructure deep into the hinterlands on the top of this backbone for the last mile connectivity. PM's Wi-Fi access network, जैसे इसको PM वाणी कह सकते हो, this decentralizes this interface and this broadband access. Power by unlicensed spectrum and light touch regulations, it is envisioned to affordable open Wi-Fi services through millions of public data offices, millions. यानी आपके किराना शॉप से लेकर स्मॉल बिजनेसेस और लोकल एंटरप्रेन्योर भी इसको कर पाएंगे। सो पब्लिक वाईफाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी जो है हमारी, उसने 10 मिलियन हॉटस्पॉट्स 2022 तक टारगेट किया था, 10 मिलियन हॉटस्पॉट्स बाय 2022। एंड आप कह सकते हैं कि 6G विजन भी उन्होंने रखा है। फ्रांस एक छोटा नेशन है, उसके पास 13 मिलियन पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स अकॉर्डिंग टू डेटा बाय TRAI। अगेंस्ट दिस इंडिया इज बियरली 0.5 मिलियन। तो पॉइंट वही है, जैसा अभी हमने रिन्यूएबल और फॉसिल फ्यूल एनर्जी की बात की, वहां हमने गैप देखा, सेम गैप यहाँ पर भी है। सो द क्वेश्चन इज हम कैसे कर सकते हैं? लास्ट माइल कनेक्टिविटी को हमें पाना होगा, इकोनॉमिक्स ऑफ मोबाइल टावर्स एंड प्राइवेट ब्रॉडबैंड एक्सटेंशन जो है उसको आगे देखना होगा। भारत नेट एंड पीएम वाणी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, वो पावर कर रहे हैं इंडिया के डिजिटल सिटीजन को। डीपीआई जैसे यूपीआई है, डिजी लॉकर है, ई श्रम है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, ये जो हमने सारी बातें की, ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के अलावा हमें नए नए हमें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो पीएम वाणी हॉटस्पॉट्स, मिनी डिजिटल इंडिया सेंटर जो है वो रैंप अप कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमें फ्रेंच सिटीज या पेरिस का हमें मुकाबला करना है, बट द क्वेश्चन इज दैट जो लॉन्ग डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं तो कनेक्टिविटी पूरी रहेगी, टेली मेडिसिन चलेगा, डिजिटल एजुकेशन हो सकती है, स्किल प्रोग्राम। मैं भी आपसे डिजिटल माध्यम से ही बात कर पा रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है ना हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स और जो बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट जो इंटीरियर्स में है वो उस तक हम पहुंच पा रहे हैं। गोल हमारा है उन तक पहुंचना है। तो बूस्ट टू रूरल एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए। वही बात है, डिसेंट्रलाइज आर्मी जो होगी, पीएम वाणी जब लोकलाइज करेगी ओनरशिप ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे और ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। और एक वाईफाई एक्सेस पॉइंट जो है वो 10,000 से 20,000 के जो अंदर खर्चा हो जाता है, और आप अगर उसे मॉडरेट यूजर फी भी लगाओगे, बंडल लाइक सेलिंग फोन टॉपअप, डिजिटल गुड्स, कंटेंट एक्सेस, तो इससे क्या होगा कि सिस्टम एक तरीके से रन ऑफ होने लग जाएगा। लीप फ्रॉगिंग द मोबाइल ओनली मॉडल, अभी मोबाइल डेटा रिवोल्यूशन हमारे यहाँ हो चुका है, लेकिन पॉइंट यही कि मोबाइल ब्रॉडबैंड से सब कुछ नहीं हो पाता, कंसिस्टेंसी नहीं होती, सस्टेनेबिलिटी नहीं होती। फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस से हायर ब्रॉडबैंड विड्थ आती है लोअर कॉस्ट के ऊपर, और उससे वीडियो बेस्ड लर्निंग, टेली हेल्थ, डायग्नोस्टिक, स्मार्ट एग्रीकल्चर, और ये सारी चीजें हो पाती हैं, टीवी, पीसी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हब्स। और पंगा यही है कि अब हमें जो है पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट हमें तैयार करने होंगे
भारत नेट पीएम वाणी कॉम्बो जो है इस बात के लिए अलाउ करता है, इस बात पे हम फोकस कर रहे हैं। मेंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि पीएम वाणी जो प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है वो कैसे काम करेगा। पीएम वाणी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, वो उसके चैलेंजेस हमें देखने, इससे आप कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई शुड से दिस आर्टिकल इज एंड resilient widespread networks unlike centralized mobile networks vulnerable to congestion or disaster related failures। distributed public Wi-Fi powered by BharatNet वो resilient है, मल्टी नोड नेटवर्क है। अगर एक नोड फेल हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। तो फ्लड्स हैं, पेंडेमिक्स हैं, डिस्ट्रप्शंस हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, फ्लैश फ्लड्स, इन सब केसेस में डिसेंट्रलाइज मॉडर्न कैन बी अ लाइफलाइन फॉर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। बॉर्डर एरियाज हैं, जब भारत सरकार ने विलेज बॉर्डर प्रोग्राम चलाया तो वो इसी समय के लिए चलाया, जैसा भी हमने भारत पाकिस्तान के बीच में एक भयावह दृश्य देखा पिछले 20 सालों के अंदर। हर्डल्स आर देयर, क्वालिटी उसकी इंप्रूव करनी होगी, टैरिफ को रेशनलाइज करना होगा, उसके बाद जनरल अवेयरनेस करनी होगी, और ये सब चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। आपको डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक, जो हमने 7,000 ब्लॉक्स की बात की, उन तक सारी बात को पहुंचाना होगा। और जो हमारी पार्टनरशिप है, जैसे एटीएनटी की बात की, AT&T's new partnership with Helium is a shining example. The public looks to the regulator and policy makers to lead the way to affordable and ubiquitous broadband in India। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ठीक से लीवरेज करेंगे तो इंडिया का स्पेस जो है पीपल सेंट्रिक डिजिटल इनोवेशन में नंबर 1 होगा। ग्लोबल एडमिरेशन आया है हमारे यूपीआई और आधार के लिए, लेकिन भारत नेट और पीएम वाणी उसकी दूसरी 2 आंखें हैं। यू प्लीज अगेन राइट बैक ए शॉर्ट नोट, अपने आप लिखिए, फैक्ट्स को लेके आइए, मुझे एक पूरी पिक्चर प्रेजेंट कीजिए जिसमें सक्सेस दिखाई देगी। जयशंकर स्पीक्स विद तालिबान, तो फर्स्ट टाइम हमने पॉलिटिकली तालिबान के साथ कनेक्ट किया है, तालिबान के साथ हमने पॉलिटिकल रिलेशनशिप रखने की बात की है। तालिबान के हमने जो कुछ जो अटारी बॉर्डर के ऊपर उनके बहुत सारे ट्रक्स भी रुके हुए हैं, उनको भी हमने स्पेशल जेस्चर में हमने भेजा है, मतलब हमने उनको आने दिया है। लेकिन पॉलिटिकली भी अभी भी हमने तालिबान के रिजीम को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इंडिया अभी भी जो है तालिबान को ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट एड दे रहा है, ये एक अलग बात है। तो जयशंकर साहब ने वेलकम किया तालिबान के सपोर्ट को पहलगाम पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हिस्टोरिकल टाई है इंडिया और अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान की फ्रेंडशिप, अफगानिस्तान के काबुली वाला की स्टोरी जो हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, और अफगानिस्तान की पश्तो पठान, वो हमेशा से हमने हमेशा से हृदय के ऊपर ही रखा है। Remark on Colonel Qureshi, High Court says FIR MP minister subfish and that doesn't inspire confidence. But this is also a very very आप कह सकते हैं कि जो काम पॉलिटिक्स को करना चाहिए, जो काम एग्जीक्यूटिव करना चाहिए, वो काम अभी हाई कोर्ट को करना पड़ रहा है। फिर आप कहते हैं कि हाई कोर्ट जो है वो एक्टिविस्ट हो गया है। कंटेम्प्ट की बात इसलिए की जाती है ताकि जो काम कोई ना कर पाए, कोर्ट का काम है कि सोशल हार्मनी को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रखना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So that's what we can say. Restore forest near Hyderabad University, ये अगला क्वेश्चन भी वही है कि भाई लार्ज स्केल फेलिंग आपने 3 दिन में कर दी, आपने सोचा भी नहीं और आपने उनको काट दिया, तो अब आप कैसे करेंगे? अदरवाइज ऑफिसर सेंट टू जेल। सुप्रीम कोर्ट टेल तेलंगाना, नाउ दिस इज वेरी वेरी सिंपल, दिस प्रॉम्प्टेड। आप यही वही वाली बात है ना कि जो इसके अंदर पूरा दिया हुआ है कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी जब तेलंगाना की तरफ से जब हाजिर हुए, उन्होंने बहुत टाइम मांगा। तो जस्टिस ए मसीह साहब ने जब उनसे पूछा कि ऑल दैट डिफोरेस्टेशन had been halted, जब उनसे पूछा गया, everything has stopped, nothing is happening there, ऐसा सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर साहब ने कहा। who is the amicus curiae in the matter, drew the court attention to the CEC's report, and also according to it 60% of the affected area falls within the moderately dense and heavily dense forest category. Authorities had gone ahead with the drive, taking advantage of the long weekend, apparently indicating that this was deliberately done. सिंघवी साहब ने कहा कि approve did not come over the weekend but took 1 year through the institutional process. This prompted CGI to ask, if you are a bona fide, then why did you start on Monday? आपने छुट्टी में ही क्यों की? लॉन्ग वीकेंड में ही क्यों किया? Did you have an environmental clearance? He said if the state so wishes, we will serve for contempt. So before take a decision to restore the forest, or secretary will be in trouble. अब मैटर को दोबारा सुना जाएगा। टॉप गवर्नमेंट सोर्स ने यही कहा कि एक्सपर्ट ओपिनियन मांगा है लीगल डिपार्टमेंट से टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। Congress government in Telangana hold the judiciary in the highest esteem, will follow the observation in letter and spirit. Government believes that there should be fine balance between the need to protect environment and need for development that people deserve. दूसरा ऐसा ही, अगर हम यहाँ पर एक और जो आर्टिकल है जो आजकल अंतिम जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, पम्प्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नीलगिरीज गेट प्रीलिमिनरी। तो वही बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज ग्रांटेड प्रीलिमिनरी परमिशन टू कैरी आउट एन एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी for proposed 1000 megawatt Upper Bhavani pumped hydro power project in the Nilgiri Hills located in the ecologically fragile Western Ghats. इसको करेगा कौन? NTPC,
Tamil Nadu Energy Company Limited, and a joint venture between Tamil Nadu Generation and Distribution and Corporation Limited, TANGEDCO कर सकते हैं आप. Pumped hydropower or the pump storage aims to harness the water of the Upper Bhavani Dam and the avalanche emerald reservoirs in the Nilgiris to generate 1,000 megawatt of power. अभी हमने बात की थी कैसे चाइना काम कर रहा है, अभी हमने बात की थी कैसे हमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का रखना है. तो क्या हम यहाँ पे कुछ ऐसी बात सोच पा रहे हैं उस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट को, क्योंकि अराउंड 167 एकर्स ऑफ लैंड चाहिएगा, and in which 56 acre land is forest, and while 111 hectare is non-forest land. It is located within 1 kilometer distance from Mukurthi National Park. The national park is known for the flagship Nilgiri tahar, an endangered species endemic to this part of Western Ghats. So अब यही देखिए आप कि क्या इसको अप्रूवल मिलना चाहिए, और हम जब कह रहे हैं कि इसको प्रिलिमिनरी अप्रूवल मिल गई है और उसको मिल गई है तो क्या उसको सब कुछ फॉलो किया जाएगा. मिनिस्ट्रीज एक्सपर्ट अप्राइजल कमिटी on river valley and hydroelectric projects, one of the 11 sectoral panels that scrutinizes the project before granting approval, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है. सो टेक्निकल अप्रूवल मिल गया है. टेक्निकल ग्रांट ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस, स्कोप बताया है EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट स्टडी जो की जाएगी, इम्पैक्ट स्टडी करनी चाहिए. EAC has specified the company should assess the project's impact on aquatic and terrestrial ecosystem, and site visit shall be carried out by a subcommittee before granting final environment clearance जो मिलेगा. Preliminary permission, even though it had in February expressed concern regarding the ecological and environmental sensitivity of the region, and it is forming part of the Western Ghats, a globally recognized biodiversity hotspot. Given the area's rich biodiversity, fragile ecosystems, the EAC had set on conducting comprehensive environment assessments and asked developers to find alternative sites. So during the meeting on 15th, the developers provided an alternative layout. They justified it on the ground the project water conductor system and other key components would be underground, thus minimizing environmental impact. लेकिन मिनिमाइजिंग कितना, और ऊपर से नीलगिरी टहर जो आप मुकुर्ती नेशनल पार्क की यहाँ जो आप बात कर रहे हो उसका क्या होगा. और दूसरा, आप कितनी एनर्जी 1,000 मेगावाट ऑफ एनर्जी जो आप पैदा करने की बात कर रहे हो, जो ये NTPC और तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन की जो बात हो रही है, क्या सस्टेनेबल तरीके से करके लॉन्ग टर्म में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये सोचने वाली बात है. इसी डायरेक्शन में आप इसको दोबारा से अपने माइंड से सोच कर करिए, अल्टरनेटिव्स मुझे बताइए, तब हम विकसित भारत की दौड़ में एक और कदम आगे बढ़ा पाएंगे. सो लेट्स कंटिन्यू द प्रिपरेशन with confidence, clarity, transparency, and happiness. Thank you very much. Wishing all of you all the best.